अब पिछला पक्का बंद कर दें। हम्म। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि वसहबिहि बारिक वसल्लम। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी के हवाले से इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान और इनकी हैंडलिंग कैसे है, क्या तरीक़ाकार ऑप्ट किया जाता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है उसको कैसे देखती है सारे मामले को, और उसके बाद फिर इसको हम कैसे टैकल करते हैं। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान। आप सब लोग जानते हैं कि जब कोई चीज़ बैरून मुल्क से मंगवाई जाती है तो उसको गवर्नमेंट की परमिशन के साथ मंगवाई जाए तो इंपोर्ट्स कहते हैं, और अगर गवर्नमेंट की परमिशन के बगैर मंगवाई जाए तो वो स्मगलिंग के ज़िम्मे में आती है। कोई चीज़ जब पाकिस्तान में आती है तो उसके लिए या वो शिपिंग से कार्गो हुई है या रेलवे से, या फिर वो अफगानिस्तान के साथ या चाइना के साथ जो हमारा बॉर्डर है सुस्त पे अफगानिस्तान के साथ चमन पे, तो वहाँ पर जो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होते हैं वो हम कह देते हैं जी कि यहाँ से बिल ऑफ लेडिंग के जरिए हमने कोई चीज़ इम्पोर्ट की है। तो इन इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट की अहमियत क्या है, कैसे इसको डील करते हैं, क्या हमें इम्पोर्ट की ज़रूरत है, क्या हमें एक्सपोर्ट की ज़रूरत है। कोई भी मुल्क जो है वो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनी कंट्री to carry on all its needs locally. So, in case of need, it has to import certain goods from abroad. Or similarly, when a country is exporting, it means that it has surplus production at home, and due to that reason, the surplus production is being exported abroad, and foreign exchange is earned. If we have surplus agriculture products, then we can export that. If we have surplus product of textile made ups, then we can export that. If we have surplus sugar, so then we can export that. If we have surplus flour in Pakistan, so wheat in Pakistan, we can export that. Similarly, if we need certain machinery from abroad, so then we can import that. If we can, if we need something according to our defense goods, so then we can import that from many countries producing that. So import and export are being governed under the topic of our commercial policy. If we allow all people to import goods from abroad, so it means that the industry which is producing local goods, similarly, similar local goods, so the goods being imported from abroad can are superior in quality, and the goods locally produced cannot meet the required standards, because in industry in Pakistan is at infant level. So we have to give protection to the industry which is locally fabricating such similar goods.
So when these goods are imported in Pakistan, people will prefer and like to purchase the foreign goods. But our industry producing similar goods at home will be destroyed. So government cannot allow the import of everything. Government have to put certain restrictions upon the import of that particular goods. Otherwise, your local industry at home will be destroyed. So, in order to give protection to the industry, we have to put certain barriers of trade tariffs here. If we allow all production from abroad to come at a lower price, so the price in Pakistan may be high for similar goods which are locally produced here. For example, if we allow the import of electronic goods in Pakistan, like fans, like tube lights, like saver. So the production made at Pakistan is not up to the similar standards which are produced by the foreign countries or industrialized countries. Their price may be cheaper because they have already achieved the economy of scales. So for that particular reason, the government has to put certain import taxes in that. These taxes include the trade tariffs, the VAT value addition tax, the custom tax, the import tax, the import cess, the educational cess. So different types of taxes can be imposed by the government in order to protect the local industry from the imported goods. खुदा ने भी ज्वाइन किया अपना फौरी तौर पे माइक बंद करें वो स्टूडेंट जिन्होंने भी ज्वाइन किया है अपना माइक बंद कर दें तो इस सूरत में हमारे पास फिर कुछ ऑप्शन बहुत लिमिटेड है इन ऑप्शन को म्यूट करने के लिए हमें चाहिए कि हम जो चीज़ भी इंपोर्ट करना चाहते हैं जो चीज़ भी एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उसके लिए अभी रिसेंटली आपने देखा कि गवर्नमेंट एक्सपोर्टेड प्लान लास्ट ईयर टू एक्सपोर्ट द सरप्लस प्रोडक्शन ऑफ शुगर जो ज़्यादा चीनियाँ थी एस्टिमेट से चारों सूबों से एस्टिमेट लिया गया और एस्टिमेट लेने के बाद चारों वजीर खुराक ने बताया कि ये चीनी सरप्लस है तो शुगर मिलों ने वो एक्सपोर्ट कर दी वो एक्सपोर्ट की गई 60 रुपए के हिसाब से पर केजी सिमिलरली वो जब वो प्रोडक्शन एक्सपोर्ट हो गई कुछ अफगानिस्तान को चली गई कुछ बलूचिस्तान को चली गई कुछ सिंध को चली गई कुछ पंजाब से एक्सपोर्ट हो गई कुछ आज़ाद कश्मीर में चली गई कुछ जनाब वो बलूचिस्तान में चली गई कुछ आपने एक्सपोर्ट कर दी इधर रिसेंटली जो था अफगानिस्तान को तो उसके नतीजे में यहाँ शॉर्टेज हुआ और फिर आपने देखा वो चीनी का स्कैंडल किस हद तक बना फिर गवर्नमेंट ने शुगर मिलों को सब्सिडी भी दी कि चलो हम यहाँ से आपको सब्सिडी देते हैं 29 अरब रुपए की सब्सिडी भी दी लेकिन वो सारी शुगर मिलों ने कोई बॉदर नहीं किया उसका स्कैंडल की रिपोर्ट आ चुकी है वो सब लोगों ने देखा कि वजीर उस पर जो भी एक्शन लेना चाहे वो सारा लिया जा रहा है आज हमने इन दोनों को क्लासीफाई करना है कि एक्सपोर्ट करनी क्यों जरूरी है और इंपोर्ट करनी क्यों जरूरी है बात को आगे बढ़ाते हैं व्हाट इज इंपोर्ट ये उम्मीद जन्नत जो है इसको मैं क्लास से निकाल रहा हूँ क्योंकि इसका ना रोल नंबर यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है और मैं इसको दोबारा अलाउ नहीं करूँगा जब तक ये उम्मीद जन्नत साहब अपना सही नाम लेकर नहीं यहाँ पर आती इस तरह पता नहीं चलता कौन है क्लास से अस्सलाम वालेकुम सर जी वालेकुम सलाम मेरी जन्नत फातिमा है हाँ जी अस्सलाम वालेकुम सर जी उम्मीद जन्नत फातिमा है वो कह रही मुझे ऐड कर ले मैं ऐड होके अपना नेम चेंज कर लेती हूँ उस तरह हो नहीं रहा उसे नहीं हो रहा ना हो सर लेकिन उसको उसे करने नहीं आ रहा नाम चेंज कर के फिर आए इस तरह नहीं होना उसका एडिशन यहाँ पर उसका जाती मसला सर वैसे सारे हो नहीं रहा ना उसका नहीं होगा आई डोंट ऐड सच स्टूडेंट के जो इस तरह के ड्रामे करे इस तरह के किसी बंदे को इजाजत नहीं है मैंने यहाँ से पर कुछ लगाए होते हैं वो जो सेंसर तो मुझे पता नहीं चलता कौन क्या है उसका रोल नंबर डिस्प्ले होता कि कौन है अच्छा जी चंद दिन पहले शाह साहब की क्लास में भी किसी स्टूडेंट ने ड्रामा किया उन्होंने लेक्चर ऑफ करके सब लोगों को की कर दी है वो एब्सेंट व्हाट इज इम्पोर्ट इम्पोर्ट क्या चीज़ है गुड्स आर सर्विसेज दैट आर प्रोड्यूस अब्रॉड और अब हम उन्हें इम्पोर्ट करना चाह रहे हैं मुल्क में व्हाट इज एक्सपोर्ट गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस लोकली एंड सोल्ड अब्रॉड जो हमने बैरून मुल्क से मंगवाया वो इम्पोर्ट जो हमने बैरून मुल्क भेजना है वो सारे का सारा
एक्सपोर्ट होगा। ए गुड्स, इंपोर्ट की डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। ए गुड और सर्विस इज ब्रॉट इनटू वन कंट्री फ्रॉम अनदर along with export imports form the backbone of international trade. The higher the value of imports entering a country compared to export, the more negative that the balance of payment trade, a balance of payment and balance of trade. जब आप बैरूनी मुल्क से माल इंपोर्ट करते हैं तो वो गुड्स लाते हैं तो वो इंपोर्ट है, और जब आप बैरूनी मुल्क से गुड्स नहीं लाते बल्कि उनको भेजते हैं तो वो सारी की सारी एक्सपोर्ट है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के दरमियान बैलेंस रखना जरूरी है। जैसा कि आप अमेरिका से कोई चीज़ इंपोर्ट करते हैं तो उन्होंने आपकी एक्सपोर्ट के लिए एक कोटा रखा हुआ कि इतनी माल आपको बेचना है, तो अमीर मुल्क है तो बाज़ का वो पैसे लेकर भी वो बंदे को वो सारे पुर्जे नहीं देता, सारी चीज़ें वो नहीं देता। What is export? A function of international trade whereby goods produced in one country are shipped to another country for future sale or trade. The sale of such goods adds to producing nation gross output. If used for export or exchange for other product and services, the exports are one of the oldest form of economic trade and occurs at a large scale between nations and have few restrictions on trade such as tariffs and subsidies. हॉलैंड में इतनी प्रोडक्शन है काउ प्रोडक्शन इसके जो काउ मेडअप्स की या उसके मिल्क की या बटर की या जितने भी प्रोडक्ट्स वहाँ से हैं कि अगर वो एक साल ये एक्सपोर्ट कर दे सारी की सारी तो अगले 2 साल तक वर्ल्ड को हॉलैंड से बनी हुई सन प्रोडक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो फिर इन सारी चीज़ों को एक्सपोर्ट नहीं करता, वो ये करता है कि इनमें से कुछ को वो तलब कर देता है। और सिमिलरली अगर एक प्रोडक्ट मैंने बनाई है और सारी प्रोडक्शन जो मैंने एक मुल्क में तैयार की है अपने, उसके लिए मुझे ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं करने लगा हूँ उस वक्त जो आपको बता रहा हूँ। अभी यहाँ वर्ड यूज हुआ टैरिफ्स का और सब्सिडीज का, इसके ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू होनी जरूरी है। अगर फर्ज किया मेरी लोकल प्रोडक्शन की कॉस्ट है $50 और मैंने वो यूनिट प्रिपेयर किए हैं 50, तो मुझे एक यूनिट कॉस्ट कर रहा है कितने में, मुझे एक यूनिट कॉस्ट कर रहा है $1। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने अपने लोकल होम में यहाँ पर $2 प्राइस के हिसाब से 30 यूनिट सोल्ड कर दिए। 30 मल्टीप्लाइड बाय $2 तो वो मुझे रिकवर हो गया 60, जबकि मेरी ओरिजिनल कॉस्ट थी यहाँ पर कितनी, मेरी ओरिजिनल कॉस्ट थी यहाँ पर 50, $10 मुझे प्रॉफिट हो चुका है। अब मेरे पास 20 यूनिट स्टॉक में पड़े हैं तो मैं इसकी प्राइस लोअर करके इसको सेल कर दूंगा, चाहे लोकली और चाहे जो बैरून मुल्क। तो जैसे मैं ये इसे लोकली सेल करता हूँ तो लोकल मार्केट तो इस वक्त सैचुरेट हो चुकी है, वहाँ पर मेरी प्रोडक्ट मजीद बिकने को तैयार नहीं। तो मैं एक्सपोर्ट में चला जाता हूँ और एक्सपोर्ट में जाते ही सबसे पहले मैंने प्राइस रखी, वहाँ $10 $1 का कोई परचेज करने को तैयार नहीं, $2 का, तो मैं उसकी प्राइस जो है वो रखता हूँ। सपोज के जनाब मैंने उसकी प्राइस रखी है $1, तो अब वो मेरे 20 यूनिट जो है वो $1 में सेल होंगे, और जब वो 20 यूनिट $1 में सेल होंगे तो इसको डंपिंग कहा जाएगा। और कोई भी मुल्क जो है वो डंपिंग की इजाज़त नहीं देता किसी भी सूरत में, क्योंकि अगर वो माल को डंप करने की इजाज़त दे देगा तो उसकी तो लोकल प्रोडक्शन जो है वो सारी की सारी डिस्ट्रॉय कर जाएगी। जैसा कि अभी रिसेंटली हम देखते हैं पाकिस्तान में जापानीज गाड़ियाँ जो हैं वो बड़े पैमाने पे आनी शुरू हो गई थी, तो फिर गवर्नमेंट का जो ट्रेड डेफिसिट था वो नेगेटिव में चला गया, तो वहाँ से वो जो सारी की सारी गाड़ियाँ थी उस पर फिर गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगाई, कुछ यहाँ टैक्सेस रेज किए, तो तब जाके गवर्नमेंट ये सुजुकी का जो नया मॉडल आया है सुजुकी गाड़ी का, उसको प्रोटेक्ट करने में कामयाब हुई है। अब चूंकि हमारा जो एक्सचेंज रेट है वो भी काफ़ी नेगेटिव चला गया, 162-63 में डॉलर ट्रेड कर रहा है, तो गाड़ियों की कीमत में बिला वजह 10 लाख 20 लाख रुपए का इजाफा हो गया है। तो गवर्नमेंट ने ये नेगेटिव जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है इसको प्रोटेक्ट करना भी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, तो इसकी तरफ भी तवज्जो दी जानी चाहिए। आगे आती है बेसिस ऑफ इम्पोर्ट के
क्या बुनियाद है हमारी इम्पोर्ट की, कैसे हम गुड्स को इम्पोर्ट करें, कैसे हम इसको देखें, क्या इसका सारा मामला होना चाहिए, इस सारे मामले को कैसे देखा जाए कि भाई हम गुड्स जो है उसकी क्या बुनियाद है। अच्छा, समटाइम्स हमें पता चलता है कि हमारी जो नीड्स है वो ज़्यादा है, और अगर वो हम प्रोडक्शन या लोकली करते हैं चीज़ों की, तो ना तो हमारे पास इंडस्ट्री है और ना ही अभी तो सेटअप है। जैसा कि सब लोगों ने देखा कि हेल्थ क्राइसिस आया है, तो हेल्थ क्राइसिस के आते ही जो था वो वेंटिलेटर, मेडिसिन और इस तरह की चीज़ों की प्राइसेस राइज कर गई। वजह क्या थी कि यहाँ पर इस तरह की कोई प्रोडक्शन की इंडस्ट्री नहीं लगी हुई थी। इवन हम ही नहीं, इटली में भी, और उसके बाद सऊदीया में भी, और बड़े जो डेवलप्ड नेशन है, अमीर मुल्क हैं, वहाँ ब्राज़ील वगैरह और उसके बाद मैक्सिको वगैरह, तो वहाँ पर भी, या हॉलैंड जो है, या जो बड़े और ममालिक हैं यूरोप के, बेल्जियम, वहाँ पर भी हमने देखा कि ये हेल्थ क्राइसिस ऐसा क्राइसिस आया कि इस क्राइसिस की वजह से उनके पास दे वर अनएबल टू कंट्रोल इट। उनके पास हेल्थ फैसिलिटी नहीं थी। वो तमाम बूढ़ी उम्र के लोग जो यहाँ मौजूद थे सारे हमारे ओल्ड हाउसेज में, उनका तो सफाया ही जैसे हो गया। वो लोगों में से तो बचा ही कोई नहीं, क्योंकि उनको प्रोटेक्ट करने का नहीं था। और उनमें से कुछ पेरेंट्स, क्योंकि यूके में भी 30% के करीब फैमिली सिस्टम है, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि यूके में भी 30% जो फैमिली सिस्टम मौजूद है, वहाँ पर भी बुजुर्गों का, बूढ़ों का सफाया हो गया। एक तो अंग्रेज नहाते नहीं है, और उनके नज़दीक हेल्थ को जो है वो सारी की सारी सफाई की तरफ तवज्जो नहीं देते। तो वो सारे की सारी जो थी वो क्राइसिस में चली गई, और क्राइसिस में जाने के बाद वहाँ पर जो थी वो हेल्थ की फैसिलिटी नहीं थी। लोगों ने बॉडीज को अपने बहुत सारी वीडियो वायरल भी आपने देखा कि बॉडीज को अपने घरों से निकाल के बाहर रख दिया। फौज और पुलिस उठाती थी, और उसके बाद उनको वो जनाब जिस तरह डंपिंग कर रही है, और उसके बाद जो डंपिंग उनकी वो बड़ी बड़ी ग्रेव्स में कर रही है, और उस डंपिंग की वजह से भी फौज ने या घरों से उनको उठा के बॉडीज को वहां पर बरियल की तरफ लगाए। और जनाजे भी बहुत सारे लोगों के नहीं, उनकी आखिरी सुमात भी शायद नहीं हो सकी, पता नहीं चला कौन था कौन नहीं है। लेकिन बहरहाल ये कि तो फिर ये जरूरत पेश आई कि इंपोर्ट कर ली जाए इन चीज़ों की। चाइना की बकलोयर के बावजूद उनको इसके जो था ब्रिटिश मेडिकल के ऑर्डर मिले, और उन्होंने अपनी इंडस्ट्री चलाई। तो इम्पोर्ट्स बाज़ का ज़रूरी होती हैं, ज़रूरी नहीं कि आप लग्जरी इंपोर्ट कर रहे हैं, नेसेसिटीज भी इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। तो फिर स्टेट बैंक का कम है फर्ज के वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बताया, उसने भी इम्पोर्ट प्रोसीजर बताया हुआ, उसके मुताबिक हम गुड्स इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं। तो बात को आगे बढ़ाते हैं। इम्पोर्ट्स में भी made against all modes of payment subject to the procedure prescribed by State Bank of Pakistan. Private sector importers may enter into commodity exchange arrangement with suppliers abroad subject to the procedure notified by the State Bank of Pakistan. तो ये हमारे पास कोई ऐसा रूल एंड रेगुलेशन है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कि आपको पहले इम्पोर्ट परमिट लेना पड़ता है, फिर आपको गोल्ड स्टिकर लेना पड़ता है, फिर उसके बाद जनाब वो सारा कुछ आप करते हैं, फिर आपको एलसी ओपन होनी पड़ती है। जब वो एलसी रिसीव होती है तो इम्पोर्टर फिर वो गुड्स जो है हम इम्पोर्ट करते हैं, उसके लिए फॉरेन एक्सचेंज रिक्वायर्ड होता है, कितने उस पर मार्जिन रिक्वायरमेंट, आगे लंबा चौड़ा इम्पोर्ट का प्रोसीजर है, वो हमारा यहाँ पर डिस्कशन मोड नहीं। बात को आगे बढ़ाते हैं कि इम्पोर्ट ऑफ ऑल द गुड्स इज अलाउड फ्रॉम द वर्ल्ड वाइड सोर्सेज अनलेस अदरवाइज वेयर एल्स स्पेसिफाइड टू बी बैन। कुछ चीज़ें हमने बैन की हुई हैं, वो बैन में बहुत बड़ा, तकरीबन आप कह लें कि एक मीटर या एक गज मोटी किताब है, जिसका हम कहते हैं इम्पोर्ट गजेटियर्स ऑफ पाकिस्तान, जिसमें चीज़ें इम्पोर्ट करने की लिस्ट है, और उनके ऊपर टैरिफ की लिस्ट है कि क्या चीज़ें इम्पोर्ट हो सकती हैं पाकिस्तान में और क्या टैरिफ होगा। इम्पोर्ट ऑफ ऑल गुड्स इज अलाउड वर्ल्ड वाइड, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ रिस्ट्रिक्शन हम लगाते हैं, वो रिस्ट्रिक्शन अपने लोकल गवर्नमेंट को करते हैं। एक चीज़ मैं अब जो आपको बात बताने लगा हूँ बड़ी अहम है, बहुत अहम इशू है इस वक्त। आपने देखा कि अक्सर जो है वो स्मगल्ड गाड़ियाँ पकड़ी जाती हैं या नॉन कस्टम गाड़ियाँ पकड़ी जाती हैं। गाड़ियाँ कैसे आती हैं? चमन के साथ जो पहाड़ है अफगानिस्तान के, अफगानिस्तान में वो एलसी ट्रेड है हमारी, वहाँ पर वो गाड़ियाँ आ जाती हैं, क्लियर होकर वहाँ चली जाती हैं कंटेनर पे। वहाँ पर तो इतना कोई जरूरत नहीं, फिर वो सारी गाड़ियाँ या खुल के या किसी तरह खच्चरों पे लाद के
वो सारी की सारी आती हैं और आने के बाद चमन बॉर्डर में वो उतर जाती है। मौलाना ने कुछ महीने पहले, जो मौलाना फजल रहमान साहब, उन्होंने कुछ महीने पहले गवर्नमेंट के खिलाफ इशू क्रिएट किया जी, मैं जनाब ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, इस्लामाबाद में हमला करूंगा। मौलाना कराची से शुरू हुए और उनके ज्यादा मदरसे हैं बलूचिस्तान में। अब क्या हुआ, बलूचिस्तान से वो डबल कैबन गाड़ियां जो थी, वो सारी की सारी जो नॉन कस्टम थी, जो स्मगल्ड गुड्स थे, वो सारे मौलाना के पैरोकार उस पर बैठे और तकरीबन आप कह लें कि 2000 से ज्यादा बड़ी गाड़ियां और तकरीबन 10,000 से ज्यादा छोटी गाड़ियां जो थी स्मगल, वो सारी की सारी मौलाना के साथ मोटरवे से चढ़ती हुई पूरे मुल्क के अंदर फैल गई, पूरे मुल्क के अंदर। इसी तरह कोई चीज इंपोर्ट हुई है या नहीं हुई, इसका क्या तरीका कार है, हमें पता कैसे चलेगा? अब जो मैं बात बताने लगा हूँ उसकी तरफ तो करें। Provided that the amendment brought in the order from state time to time shall not be applicable to such imports। कुछ चीजें जब आप बैरून मुल्क से मंगवा लेते हैं तो शिपमेंट में आपको एक लेटर मिलता है जिसका नाम है बिल ऑफ लेडिंग, BL। ये सबसे अहम डॉक्यूमेंट है। अब अगर बैरून मुल्क से आपने माल इंपोर्ट किया है तो इंपोर्ट करने के लिए ज़ाहिर है वो किसी शिप पे आया या किसी कार्गो पे आया, तो कार्गो का जो लेटर होगा कि दिस गुड्स आर या दिस कंसाइनमेंट इज इंपोर्टेड फ्रॉम दैट कंट्री बाय दिस लेटर, तो वो बिल ऑफ लेडिंग कहलाएगी। उसमें सारी इंपोर्ट की डिटेल होगी। आपकी गाड़ी पकड़ी जाती है बड़ी, कोई क्रूजर वगैरह या कोई मर्सिडीज या BMW, वो आपसे कहते हैं स्मगल गुड्स है, तो आप उन्हें बताते हैं कि जनाब ये BL है, ये फलां डेट को इसकी शिपमेंट कराची पे रिसीव हुई, या फलां डेट को इसकी शिपमेंट जो है वो फलां जगह रिसीव हुई और ग्वादर पे, और मैंने ये यहाँ से इंपोर्ट किया, तो कस्टम पेड है, तो ये गाड़ी आपकी BL है। तो BL जो होगा वो जाली नहीं बन सकता, क्योंकि ये जहाज की रसीद होती है, ये कार्गो की शिपमेंट है, का लेटर है, और इसकी 3 कापियां, ओरिजिनल, डुप्लीकेट और ट्रिप्लीकेट। आपके पास ओरिजिनल BL होना चाहिए। ओरिजिनल BL पे सारी प्रिस्क्रिप्शन है कि कौन से कंटेनर पे कितने बजे, कि व्हाट वाज द पोर्ट ऑफ इंपोर्ट, व्हाट वाज द डेस्टिनेशन ऑफ इंपोर्ट, और उसके बाद पोर्ट ऑफ लोडिंग एंड अनलोडिंग, वो शिपमेंट, कार्गो, प्राइस इन डॉलर, पेमेंट ऑफ फ्रेट इन डॉलर, हर चीज जो मौजूद होगी, और ये सारा कुछ उसके बाद बिल ऑफ एंट्री होगा, ये पाकिस्तान में एंट्री हुई, और इसकी LC की सारी डिटेल आप बताते हैं। तो अब ये इम्पोर्टेड जो चीज़ आपने इम्पोर्ट की है उसका मुकम्मल रिकॉर्ड है आपके पास। इम्पोर्ट ऑफ यूज्ड प्लांट एंड मशीनरी एंड इक्विपमेंट। सिमिलरली बड़ी मशीनरी जो है वो कुछ आप ब्रांड न्यू मंगवा लेते हैं, कुछ आप जो है वो यूज्ड मंगवाते हैं। जो आप यूज्ड मंगवाते हैं जाहिर है कि उसके लिए कस्टम ड्यूटी कम है, जो आप ब्रांड न्यू मंगवाते हैं उसके लिए कस्टम ड्यूटी ज़्यादा है। तो गवर्नमेंट ने आपको एक स्कीम है, इसका नाम मैंने क्लास में भी जिक्र किया था, BMR। BMR BMR, Balancing, Modernizing and Replacement। Balancing, Modernizing and Replacement। तो इसमें जनाब जो हमारे पास बैलेंसिंग, मॉडर्नाइजिंग एंड रिप्लेसमेंट है, इस BMR के तहत हम मशीनरी इंपोर्ट करने की हमें इजाज़त होती है। BM का मतलब है बैलेंसिंग, फिर मॉडर्नाइजिंग, फिर रिप्लेसमेंट। तो इन सब सूरतों में हम ये मशीनरी इंपोर्ट कर सकते हैं, इसको हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो कोई भी गवर्नमेंट जो है वो मशीनरी अलाउ करें, लेकिन इसकी एक शर्त है कि पहले वो प्लांट लगा हो आपके पास, फिर आप पुराने को सेल करें, रिफर्बिश करें, और उसके बाद जो है नया इंपोर्ट कर लें, तो इसके ऊपर आपको कम टैक्स देना पड़ेगा कस्टम। प्लांट मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स in lieu are used or condition is allowed for relocation of a complete project in all industry sector except for industries। अच्छा जी, इसके बाद जनाब हुदा बार बार क्लास छोड़ रही है, मैं इसको भी निकाल दूंगा, बार बार क्लास छोड़ के जा रही है। स्पेयर पार्ट्स ऑन द रेगुलर इन्वेंटरी लिस्ट ऑफ projects being relocated is also permissible for import
रिसेंटली हमने देखा कि हमारा चाइना से हमने बात की है और रशिया से कि हमें हैवी मैकेनिकल क्या कॉम्प्लेक्स टेक्सला जो है उसको रेनोवेट करके दें। बात को आगे बढ़ाते हैं जी। गवादर स्पेशल इकोनॉमिक जोन, गवर्नमेंट ने गवादर को स्पेशल इकोनॉमिक जोन करार दिया और उसके बाद ये गवादर को स्पेशल इकोनॉमिक जोन मियां नवाज शरीफ साहब ने नहीं करार दिया, ये क्रेडिट जाता है जेड ए भुट्टो को। जेड ए भुट्टो, जुल्फकार अली भुट्टो के दौर से एक पीपल पार्टी की गवर्नमेंट जो थी वो ये चाहती थी कि इसको जो है फंक्शनल किया जाए। इसकी समुंदर में जहां वो सड़क के साथ लगता है गहराई है 120 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 3, तकरीबन 360 फुट समुंदर गवादर में गहरा है। तो दुनिया में किसी जगह समुंदर सड़क के साथ 320-60 फीट गहरा नहीं है। अब यहाँ बड़े बड़े शिप जो हैं वो डायरेक्ट आपके जो है वो पोर्ट तक आ सकते हैं, कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस ही नहीं। तो ग्वाद इसके साथ ही थोड़ा सा आगे जाए तो ईरान की है चाबहार, वो जमीन में तकरीबन 20 मीटर गहरी है, यानी 60 फुट। वहां पर इतने बड़े गहरी जहाज नहीं आ सकते। तो इस गवादर को हमने इकोनॉमिक जोन का नाम देकर इसको यहाँ पर इंडस्ट्री लगाने की इजाजत दी है। ये ग्वादर पे ज्यादा काम किया मियां नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट ने, फिर मुशर्रफ की गवर्नमेंट ने वहाँ सड़कें बनाई, मंद रोड कराची से इसे मिक्स किया। फिर उसके बाद मंद रोड के बाद इसको हब से सिंध के साथ किया हुआ है और उसके बाद फिर इसको पाकिस्तान में अब सी पोर्ट के ये जो हमारा सी पैक चल रहा है उसके वाले से सारा काम इसके ऊपर काम जारी है। चूंकि इस सारे जोन को जो टेक ओवर किया था वो किया पाक आर्मी ने, तो चाइनीज के इसमें बड़ा रोल है और वो उन्होंने सारी इन्वेस्टमेंट की है। यहाँ पर पहले सड़क बनेगी, उनका माल एक्सपोर्ट होगा, माल एक्सपोर्ट होने के बाद फिर आगे जनाब क्या सूरत हाल होगी, माल एक्सपोर्ट होने के बाद हमारे साथ साथ इंडस्ट्री लगेगी। ये इंडस्ट्रियल हब मुकम्मल तौर पे अब बन रहा है और बन जाएगा इंशाल्लाह ताला। बेसिस ऑफ एक्सपोर्ट, किस चीज़ को आपने एक्सपोर्ट करना है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कुछ चीज़ों को एक्सपोर्ट करने की इजाज़त आपको देता है कि आप ये चीज़ें एक्सपोर्ट कर लें। अगर आपके ये मुल्क में ज़्यादा हैं तो आप इन चीज़ों को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जो सरप्लस है, रिसेंटली आजकल कौन सी चीज़ एक्सपोर्ट हो रही है, राइस हो रहा है, उसके बाद जनाब नेक्स्ट और क्या हो रहा है, कॉटन हो रही है, और क्या हो रहा है, और जनाब आम हो जाएगा, वेजिटेबल्स होती हैं, सोप हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ से बाहर जा रही हैं। कि फेडरल गवर्नमेंट इसके लिए एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन और इंपोर्ट और री एक्सपोर्ट जो है वो करने की इजाज़त दे देती है। कोरोना वायरस 2 की एंट्री बैन करो और ये जनाब इसको यहाँ से सस्पेंड करके रिमूव कर दिया गया कोरोना वायरस 2। ओके, दोबारा इसको एंटर होने की इजाज़त नहीं होगी। फेडरल का ये जीआर सुन रही है क्लास में? जीआर जी सर। कोरोना वायरस कौन है? सर नहीं बताया, पता नहीं कौन है। जो भी है इसकी अब एब्सेंट लगनी है और फातिमा की भी एब्सेंट लगनी है। अभी मैं कुछ ही देर में हाजिरी अपलोड करने लगा हूँ, इनकी एब्सेंट लगनी जो नहीं आ रहा है। अच्छा, फेडरल गवर्नमेंट जो है वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए ऑर्डर इशू करती है। कुछ चीज़ें हम इम्पोर्ट करते हैं फिर एक्सपोर्ट कर देते हैं दूसरी कंट्रीज को। अपना माइक बंद कर दें। अच्छा जी, ग्वादर स्पेशल इकोनॉमिक जोन बताया मैंने आपको कि यहाँ से चीज़ें इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है। क्या हमारी मेजर एक्सपोर्ट है? रॉ कॉटन है, टेक्सटाइल प्रोडक्ट हैं, राइस है, लेदर गुड्स हैं, कारपेट्स हैं, खाले रग्स वगैरह, सिंथेटिक टेक्सटाइल है, स्पोर्ट्स गुड्स हैं, रेडीमेड गारमेंट है, वेजिटेबल है, फ्रूट है, फिश है, इंजीनियरिंग गुड्स हैं, केमिकल फार्मास्यूटिकल है। क्या प्रोसीजर है? सबसे पहले आपके पास एनटीएन नंबर होना चाहिए अपनी रजिस्ट्रेशन के लिए। एनटीएन नंबर टेक्सटाइल टैक्स नंबर को कहते हैं। ये आप अपना नाम वहाँ रजिस्टर करवाते हैं। एनटीएन के बगैर वो आपको बतौर एक्सपोर्टर रजिस्टर कर नहीं करेंगे। एनटीएन के बाद आप सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन करवाएं अगर आप कमर्शियल एक्सपोर्टर नहीं है, और अगर आप कमर्शियल एक्सपोर्टर हैं तो आपको ये करवा लेनी चाहिए। नंबर नेक्स्ट बैंक अकाउंट ओपन करें, करंट अकाउंट होना चाहिए।
एक्सपोर्ट के लिए, और चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्री की मेंबरशिप हासिल करें ताकि आप पता चले कि आप ताजर हैं, आप ट्रेडर हैं। आप वहाँ पर ये चीज़ हासिल करने के बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फिर आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को रिक्वेस्ट करते हैं, इनका ऑफिस यहाँ पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में है पाकिस्तान इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट में, कि हमें जनाब बतौर इंपोर्टर या बतौर एक्सपोर्टर जो है वो रजिस्टर्ड कर लिया जाए। आप क्लियरिंग एजेंट के तौर पे भी रजिस्टर्ड हो सकते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट ये चाहिए। अच्छा जी, जब आपने गुड्स भेजने हैं तो आपने कंसाइनमेंट प्रिपेयर करनी है। आपके पास यहाँ पर क्या होना चाहिए, पैकिंग लिस्ट होनी चाहिए। पैकिंग लिस्ट में आप बताएंगे सामान में क्या क्या, फर्ज किया आपके 100 एक कंसाइनमेंट 100 बैगेज पे मुश्तमिल है तो आप बताएंगे 100 बैगेज में पहले का वजन जो इतना है, दूसरे का इतना है, इसकी क्वांटिटी ये है, इसकी क्वांटिटी है, और ये आप डिक्लेयर करेंगे। कमर्शियल इनवाइस आप बनाएंगे जिसे हम आम अपनी जुबान में बिल कहते हैं। एलसी की कॉपी साथ लगाएंगे। एलसी किसने ओपन करनी है, एलसी इंपोर्टर ने ओपन करनी है। एलसी जैसे ही आप ओपन करते हैं तो एलसी ओपन होते ही क्या कैफियत है, ये एलसी ओपन होते ही ये पता चल जाता है ये गुड्स जो हैं किस मुल्क को जा रहे हैं, वो आपको एलसी भेजता है। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन आप देते हैं, ओरिजिनल फैसलाबाद का है तो आप बताएंगे सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन में चैम्बर ऑफ कॉमर्स बताएगा कि हाँ जी ये इंडस्ट्री पाकिस्तान फैसलाबाद में मौजूद है, लाहौर में मौजूद है, इस्लामाबाद में मौजूद है, एंड आई सर्टिफाई दैट these goods are produced in पाकिस्तान। इसके बाद NTN सर्टिफिकेट आप साथ लगाएंगे और उसके बाद आप सामान को लादेंगे। लादने के बाद आप फौरी तौर पे ई फॉर्म फिल करते हुए इसको ले जाएंगे। अगर आपने अपने शहर से करना है तो यहाँ पर रेलवे भी आपको कार्गो फ्राहम करता है शिपिंग पोर्ट तक, और अगर आपने दूसरे कराची वगैरह से इम्पोर्ट करना है तो डायरेक्ट शिपमेंट के लिए आपको वहाँ से कंटेनर हासिल करना होगा। फॉर्म ई स्टेट बैंक इजाज़त देगा कि हाँ जी ये गुड्स जो हैं ये इंपोर्ट पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हो रहे हैं, तो ये डॉक्यूमेंट ऑफ एक्सपोर्ट है, इस पे ई फॉर्म की इजाज़त दी जाती है। ये ई फॉर्म बताता है कि ये हम रेगुलर सेशन से पाकिस्तान में पैसे लाएंगे, इसके लिए बैंक यूज़ किया जाएगा, कोई हवाला या हुंडी यूज़ नहीं की जाएगी, हवाला या हुंडी फॉर्म यूज़ नहीं करेंगे। इसी तरह इंपोर्ट का एक्सपोर्ट प्रोसीजर है, कौन सी चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं। हमारी तो बहुत सारी इंपोर्ट हैं, और रिसेंटली अगर देखा जाए तो उन इंपोर्ट की लिस्ट बहुत ज़्यादा है। उन इंपोर्ट की लिस्ट में से चंद एक चीज़ों को हम देखते हैं कि वो कौन सी है। अच्छा जी, अब उन इंपोर्ट की लिस्ट को हम देखने लगे हैं। मशीनरी है, पेट्रोलियम है, केमिकल है, व्हीकल स्पेयर पार्ट्स हैं, एडिबल ऑयल है जो पाम ऑयल इंपोर्ट करते हैं, वीट है, टी है। ये जी मजाक बनाया हुआ यहाँ पर एक्सपोर्टर ने, पहले वीट एक्सपोर्ट कर देते हैं फिर इंपोर्ट करते हैं, फिर तो इसी में पैसे बनाए जा रहे हैं। फिर टी है, फिर फर्टिलाइजर है, प्लास्टिक मटेरियल है, पेपर बोर्ड है, आयरन स्टील है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से मुतल्लिका प्रोडक्ट्स हैं, ये हम इंपोर्ट करते हैं। प्रोसीजर इसका क्या है, वही प्रोसीजर है जो एक्सपोर्ट का है। सबसे पहले आपको अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है NTN के वाले से कि भाई आप जो है वो एक रजिस्टर इंपोर्टर के तौर पे अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएं। रजिस्टर मिनिस्ट्री ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट के पास आप रजिस्टर करवाते हैं, NTN भी, बैंक अकाउंट भी, सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की रजिस्ट्रेशन, सेल टैक्स ऑन इम्पोर्ट का सर्टिफिकेट आप लेते हैं। फिर उसके बाद जनाब क्या होता है कि आप अपनी जो चीज़ इंपोर्ट करना चाहते हैं उसका प्रोसीजर है, LC ओपन करते हैं। LC ओपन करके फिर आप बताते हैं कि जनाब ये मेरा कॉन्टैक्ट है, इस चीज़ से मैंने इम्पोर्ट करना है, इस पे इतना फॉरेन एक्सचेंज रिक्वायर्ड है, मुझे इतने पैसे बैरून मुल्क जाएंगे, और फिर उसके बाद ये इस तारीख तक सामान आएगा। नेक्स्ट फिर हमारे कौन से मुल्क है जिनको हम माल इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, जिनसे हमारी मेजर इम्पोर्ट है, और पाकिस्तान में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, चाइना है, सऊदीया है, कुवैत है, मलेशिया है, जापान है, इंडोनेशिया है, और USA। इंडिया से भी हम माल इम्पोर्ट करते हैं, कुछ चीज़ें हमें वहाँ सस्ती पड़ती हैं। इवन के प्याज जो हमारा, या ये आलू जो है, ये भी बाज़ औक़ात हमें इंडिया से इम्पोर्ट करने पड़ते हैं। टी जो है इंडिया से इम्पोर्ट करते हैं, पान का पत्ता जो है इंडिया से इम्पोर्ट करते हैं। तो इन सारी चीज़ों की तरफ हमने तवज्जो दी कि ये हमारी मेजर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट है।
पाकिस्तान में पहले होता था इंपोर्ट और एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो, वो उसमें के काउंसलर किए जाते थे जो हैं हर सफारत खाने में। तो अब जनाब ये इकरा कमर और अली हैदर को एडमिट कर लेते हैं। तो एक ये काउंसलर थे नवाज शरीफ के दौर में, फिर ये जो था एक बुरा अगली फेस है कि नवाज शरीफ ने अपने सियासी दोस्तों को जो था ना जी वो करना शुरू किया कि चलो मैं इन सियासी दोस्तों को थोड़ा सा एंटरटेन कर दूं, इनको कमर्शियल काउंसलर लगा दूं। कमर्शियल काउंसलर का मतलब होता है कि जिस मुल्क में आप ये अपॉइंट करें अपने सफारत खाने में, वो सफारत खाना जो है वहाँ पर आपके लिए देखे कि वहाँ से क्या चीज़ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो सकती है, आपके लिए ट्रेड ऑर्डर जो है वो हासिल करे। ट्रेड ऑर्डर जो है वो आपके लिए हासिल करे। इकरा कमल बार बार तंग कर रही है, इसको मेरे ख्याल रिमूव कर दिया जाए, इसको भी प्रॉब्लम है, इकरा कमल को रिमूव किया जाए, कुछ इसकी एब्सेंट भी लगा दी है, बार बार तंग कर रही है। तो इसमें जनाब हम क्या करते हैं, पाकिस्तान इंटरनेशनल ट्रेड इज सफरिंग फ्रॉम ह्यूज अमाउंट ऑफ डेफिसिट। वो सारे मेरे बच्चों ज़्यादा एक्सपोर्ट हमारी कम है, इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा है। डोमेस्टिक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आल्सो अकाउंट फॉर ट्रेड डेफिसिट। जो हमारी यहाँ घूमते हैं वो स्टेबल नहीं है, आते ही माल बनाना शुरू कर देते हैं, पैसे बनाना शुरू कर देते हैं, वो पैसे बनाते हैं उन पर वो करप्शन के चार्जेस लगते हैं। अभी आपने देखा कि फिर उसके बाद यहाँ पर जो है वो स्टेट बैंक भी आज़ाद नहीं है, वो इनको करप्शन के ऊपर कोई चेक एंड बैलेंसेस नहीं है। वो असेंबली में पहुंच जाते हैं चोरी करके, और जब वो चोरी करके असेंबली में पहुंच जाते हैं तो आपने देखा फाइनेंस मिनिस्टर को भी प्राइम मिनिस्टर फरार करवा रहा है, ट्रेड मिनिस्टर को भी वो प्राइम मिनिस्टर फरार करवा रहा है। कोई बंदा अकाउंटेबिलिटी बनाने के लिए तैयार नहीं। खान साहब ने ये जो स्लोगन किया था एक्सपोर्ट हम करप्शन पाक करने का, उसमें भी हमें कोई बेहतरी खातर खा नजर नहीं आई और ना ही कोई इतनी रिकवरी हो पाई है। कुछ काम रोल कोर्ट्स का है, कोर्ट्स के अंदर पहले वो लंडे के कोट पहनने वाले वकील जो हैं वो सारे के सारे प्रैक्टिस करते रहते हैं, फिर वो जजेस बन जाते हैं, फिर वो जजेस बन के जनाब वो क्या करते हैं, वो जजेस बन के पता नहीं अल्लाह ताला उनको हिदायत नसीब फरमाया, अब इस पे सर मैं खामोश हूँ। अच्छा जी, 11 में हमारी एक्सपोर्ट जो थी वो थोड़ी और कम हो गई और ऑयल की इंपोर्ट ज़्यादा हो गई। फिर उसके बाद आगे ये सिस्टम हमारा चल रहा है, पाकिस्तान हैज़ ए गुड बिजनेस डील विद ऑल इट्स पार्टनर बट अनलॉकिंग इट्स इंपोर्ट मोर देन इट्स एक्सपोर्ट। तो पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि इंपोर्ट हमारी बहुत ज़्यादा है, और तो और स्मगल्ड चैनल से बड़ा माल आ रहा है, उसको भी रोकने की ज़रूरत है। एक्सपोर्ट मोर और आर मोस्टली कंपोज्ड ऑफ रॉ मटेरियल। अब आप देखिए कि हम यहाँ 6 मंथ में वीट प्रोड्यूस करते हैं, हम वीट एक्सपोर्ट करते हैं और उसके ऊपर एक मोबाइल फ़ोन इंपोर्ट करते हैं 1 लाख 5 लाख रुपए का। हमारी जो गंदम है वो 6 महीने में तैयार होकर 5 लाख में सेल हुई, और जो हमने चीज़ इंपोर्ट की वो फ़ोन वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट में बना है, और उसके बाद जनाब वो 2 मिनट उसकी या ज़्यादा से ज़्यादा 6 मिनट उस पर टाइम लगा होगा। तो वो आप देख लीजिए कहाँ पर 10 मिनट टाइम और कहाँ 6 मंथ टाइम की जो सेविंग है। अब ये सारा प्रॉब्लम हमारे लिए बन रहा है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इसकी तरफ तवज्जो दे, फार्मर्स की तरफ तवज्जो दे। 19 लोग मौजूद हैं, इनकी मैं अटेंडेंस ऑनलाइन कर रहा हूँ, लेक्चर का टाइम ख़त्म हो गया है। तो ये जीआर अभी मुझे सारा ये बताएंगी कि कौन कौन से मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात यहाँ मौजूद थे। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, थैंक यू।